यौम का आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है सीडिंग स्पेस टू टीटीपी। इस एडिटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी अमन के लिए तैयार हो गई है। क्या पाकिस्तान ने फाटा को केपीके में जम करने का इरादा जाहिर कर दिया है। क्या उलमा का वफ्द टीटीपी को मनाने में कामयाब हो गया है, या क्या गैर आईनी मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं या नहीं। तो इन तमाम सवालात का जवाब देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। Scene is quite convinced that its shuttle diplomacy with the banned TTP will yield peace dividend. ऐसा लगता है कि रियासत को काफी यकीन है कि कलादम टीटीपी के साथ इसकी शटल डिप्लोमेसी से अमन को फायदा होगा। Though there are no solid indications that can justify this optimism. हालांकि ऐसे कोई ठोस इशारे नहीं हैं जो इस उम्मीद को दुरुस्त साबित कर सके। At least not in the public domain. कम अज कम अवामी सतह पर तो नहीं। After a delegation of ulama returned home last week of following parleys with the Afghan and Pakistani Taliban. अफगान और पाकिस्तानी तालिबान के साथ बातचीत के बाद गुज़िश्ता हफ्ते उलमा कराम के एक वक्त की वतन वापसी के बाद another delegation, this time consisting of tribal areas and parliamentarians, arrived in Kabul on Saturday in order to talk to the TTP. गुज़िश्ता हफ्ते इस बार कबायली अमायदीन और अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल एक और वफ्द टीटीपी से बातचीत के लिए हफ्ते को काबुल पहुंचा। दिस इज द सेकेंड ट्राइबल डेलीगेशन। ये दूसरा कबायली वफ्द है डेट हैज विजिट अफगानिस्तान फॉर पीस टॉक्स, जिसने अमन के लिए अफगानिस्तान का दौरा किया है। एज अ ट्राइबल जिरगा हैड मेड अ सिमिलर एफर्ट इन जून, क्योंकि जून में कबायली जिरगे ने भी ऐसी ही कोशिश की थी। दीज फ्रीक्वेंट विजिट आइदर कन्वे दैट नेगोशिएशन विद द टीटीपी आर ऑन ट्रैक। ये मुसलसल दौरे या तो ये बताते हैं कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, और या दैट द स्टेट इज डेस्परेट टू डू एवरीथिंग इट कैन टू मेक पीस विद द ग्रुप, या रियासत इस ग्रुप के साथ अमन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए बेचैन है। देयर आर आफ्टर ऑल no commitment from the terrorist organization other than vague promise to keep talking. बहरहाल दहशतगर्द तंजीम की जानब से मुबहम वादों के अलावा कोई वादे नहीं हैं। All the evidence point to the latter probability. ये तमाम हकीकतें इस बात की निशानदेही करती है कि शायद कुछ होने का इम्कान है। Also at this hour, the terrorism at Pakistan's tribal border area may finally come to an end after 2 long decades, as the government of Pakistan and the outlawed Tehrik-e-Taliban Pakistan have agreed to extend the ceasefire indefinitely amid ongoing negotiations. WION has accessed exclusive inside scoop from the talks between the two delegations that indicate significant progress. Sources tell us that the negotiations conducted in Afghan capital Kabul were mediated by Islamic Emirate of Afghanistan's acting Minister for Interior Sirajuddin Haqqani, who reportedly helped in bringing the talks back on the track. Sources suggest that the Tehrik-e-Taliban Pakistan had sought release of some of its prisoners, and the demand was fulfilled by the Pakistan government as a confidence-building measure. The terror group sought enforcement in Sharia regulation in Malakand division and reversal of Fata Marja into Khyber Pakhtunkhwa. The Pakistan government reportedly dismissed both demands. The militant group wanted an office stipend for its fighters and permission to keep arms. As the state talked peace with the militant, the latter retained their goal of once again entrenching themselves in their former stopping ground. ऐसा लगता है कि जैसे ही रियासत अस्करियत पसंदों के साथ अमन की बात कर रही है, इन्होंने एक बार फिर अपने आप को साबका स्टैंपिंग बुनियादों में शामिल करने के मकसद को बरकरार रखा है। The fact that it took major sacrifice on the part of brave soldiers and civilians for the tribal belt and other areas in KP to be rid of the terrorists should not be forgotten.
इस हकीकत को फरामोश नहीं किया जाना चाहिए कि कबायली पट्टी और केपी के दीगर इलाकों को दहशतगर्दों से निजात दिलाने के लिए बहादुर फौजियों और शहरियों की जानिब से बड़ी कुर्बानियां दी गई। Neither should we disregard a series of broken peace pact with the militant who have never been sincere in keeping up their end of the डील। ना ही हमें अस्करियत पसंदों के साथ टूटे हुए अमन मुआहदों के सिलसिले को नजरअंदाज करना चाहिए, जो कभी भी अपने मुआहदे को खत्म करने में मुखलस नहीं रहे। नाउ अब while the militant are willing to receive various delegation seeking peace with them, they have indicated that they will not budge from the unconstitutional demand of having the KP FATA merge reversed। अब जबकि अस्करियत पसंद इनके साथ अमन के ख्वाहां मुख्तलिफ वफूद का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं, इन्होंने ये इंदिया दिया है कि वो केपी फाटा इंतजाम को वापस लेने के लिए अपनी गैर आइनी मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर पाकिस्तानी उलमा that were part of the delegation that meet the TTP was erased when the matter of FATA merge was raised, saying that they were men of faith, that political issues were beyond their। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर पाकिस्तानी उलमा कराम जो टीटीपी से मुलाकात करने वाले वफ्द का हिस्सा थे, जब फाटा के इंतजाम का मामला उठाया गया तो उन्होंने ये कहकर टाल मटोल की कि वो ईमान वाले आदमी हैं और सियासी मसाइल तो इनके मैंडेट से ही बाहर हैं। Sides. According to Pakistan government sources, the Islamabad delegation demonstrated its commitment to the negotiations by agreeing to some of TTP's demands. This includes release of prisoners and the presidential pardon of 2 key militant commanders. The Tehreek-e-Taliban Pakistan also demanded the reversal of federally administered tribal area, something Pakistan said it was not up for discussion here. The merger was a 2018 constitutional amendment which merged the federally administrated tribal regions with the country's Khyber Pakhtunkhwa province. Sources also said that the disbandment of the TTP, that is make or break issue here, and Pakistan delegation has made it very clear that no armed group would be allowed to enter Pakistan territory or operate as such. Set by the state respecting the constitution and laying down arms cannot be violated while negotiation with the TTP. TTP के साथ मुज़ाकरात के दौरान रियासत की तरफ से 2 रेड लाइंस नाफिज की गई हैं कि TTP के लोग आइन का एहतराम करेंगे और हथियार डाल देंगे। The establishment that has led the effort from the beginning must realize that ceding space to militant will never deliver the positive result they hope for. Establishment जिसने शुरू से ही इस कोशिश की क़यादत की है कि अस्करियत पसंदों को जगह देने से मुस्बत नताइज कभी नहीं मिलेंगे। Also, sending delegation after delegation may convey the message that Pakistan is desperate for a peace treaty with the terrorists. वफूद के बाद वफूद भेजना इस बात की निशानदेही करती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के साथ अमन मायदे के लिए बेचैन है। If the TTP abides by the state rules of engagement, then talks may have a chance of succeeding. अगर TTP रियासत के क़वायदों ज़वाबित की पाबंदी करती है तो बातचीत के कामयाब होने का इम्कान है। But the militant cannot be allowed to set the agenda, with the state meekly agreeing to all their unreasonable demand. लेकिन अस्करियत पसंदों को एजेंडा तय करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जबकि रियासत आजिज़ी के साथ इनके तमाम गैर मामूल मुतालबात से इत्तफाक करती है। Also, as Parliament is supposed to have oversight over the process, और पार्लियामेंट को भी इस तमाम काम की, इस तमाम मुज़ाकरात की निगरानी करनी चाहिए। Let lawmakers be brief about the status of talk in camera if necessary, और कानून साज़ों को भी इस बारे में आगाही देनी चाहिए so that elected representative can decide if negotiation are to be continued or the state should use other measure to bring the militant to whole,
ताकि पार्लियामेंट ये डिसाइड कर सके कि आया इनके साथ मुज़ाकरात करने हैं या कोई और दूसरा तरीका अपनाना है। आज को डिस्कस करेंगे जो कि वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 इनमें डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब है मुज़ाकरात करना, मुफाहमत करना, बातचीत करना, खुद को आगे बढ़ाना डिप्लोमेसी कहलाता है। जो पाकिस्तान की रियासत जो डिप्लोमेसी कर रही है, बातचीत कर रही है टीटीपी के साथ, डिप्लोमेसी मीन बातचीत, मुज़ाकरात, मुफाहमत। नंबर 2 इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब है इशारा करना, किसी को बुलाना, किसी की निशानदेही करना, इंडिकेशन कहलाता है। और नंबर 3 ऑप्टिमिज्म यानी रजायत पसंद, यानी एक ही कवानीन पे अमल करने वाला, अपने पहले कवानीन पे अमल करने वाला। नंबर 4 पार्लेज यानी बातचीत को पार्लेज कहते हैं, जो किसी मीटिंग के अंदर होती है उसे पार्लेज कहते हैं। नंबर 5 फ्रिक्वेंट यानी बार बार, फ्रिक्वेंट विजिटर, जो पाकिस्तान की टीम बार बार उनसे मुज़ाकरात के लिए विजिट कर रही है। और नंबर 6 निगोशिएशन यानी बातचीत करना, मुज़ाकरात करना, निगोशिएशन कहलाता है। और इसके साथ वैग का मतलब है मुबहम यानी जो क्लियर ना हो, जिसकी निशानदेही ना हो। और इसके साथ है प्रोबेबिलिटी, इम्कान, पॉसिबिलिटी होना, चांस होना, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। डिप्लोमेसी मुफाहमत, इंडिकेशंस इशारा, ऑप्टिमिज्म रजायत पसंद होना, पार्लेज बातचीत, फ्रिक्वेंट बार बार, निगोशिएशन मुज़ाकरात करना, वैग मुबहम, प्रोबेबिलिटी, चांस। और नेक्स्ट पैराग्राफ में जो हमारे पास वर्ड है डेस्पिरेट। डेस्पिरेट का मतलब है बेताब होना। डेस्पिरेट मीन बेताब होना। और ट्रीटी मायदा, जो दो लोगों के दरमियान हो, दो कंपनियों अदारों के दरमियान हो, ट्रीटी। और इसके साथ मीकली का मतलब है नरमी से। मीकली का मतलब है नरमी से। डेस्पिरेट बेताब, ट्रीटी मायदा, मीकली नरमी से। अब हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। डिप्लोमेसी मुफाहमत, इंडिकेशंस इशारा, ऑप्टिमिज्म रजायत पसंद, पार्लेज बातचीत करना, फ्रिक्वेंट बार बार, निगोशिएशन मुज़ाकरात, वैग मुबहम, प्रोबेबिलिटी इम्कान होना, चांस होना, डेस्पिरेट बेताब, ट्रीटी मायदा, मीकली नरमी से। वीडियो के इस पार्ट में हम ग्रामर और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और राइटिंग स्किल पर काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टेट रियासत, इट सीम्स इज क्वाइट कन्विंस्ड। अब इस सेंटेंस के अंदर दो स्ट्रक्चर यूज हुए हैं। द स्टेट इज क्वाइट कन्विंस्ड ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट सीम्स ये दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सीम्स वर्ब है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल होती है और पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर डू और डज को यूज नहीं करते, तो इसलिए इट सीम्स यानी सब्जेक्ट और V1 को यूज किया है। और जबकि द स्टेट इज क्वाइट कन्विंस्ड ये सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस कंप्लीमेंट है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट, that its shuttle diplomacy with the banned TTP will yield peace dividend। ये फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट इट्स शटल डिप्लोमेसी और हेल्पिंग वर्ब विल या शैल और आगे V1 डिविडेंड्स। और नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर दो देयर आर नो सॉलिड इंडिकेशन दैट कैन जस्टिफाई दिस ऑप्टिमिज्म। और इसके अंदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज हुआ है वो है देयर आर नो सॉलिड इंडिकेशंस। कोई सॉलिड इंडिकेशन इशारा नहीं है। इसके अंदर इंट्रोडक्टरी स्ट्रक्चर यूज हुआ है देयर प्लस इजएमआर प्लस कंप्लीमेंट। नेक्स्ट, पार्लियामेंट अराइव्ड इन काबुल ऑन सैटरडे इन ऑर्डर टू टॉक टू द टीटीपी। अब इसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस अराइव्ड ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये सब्जेक्ट है। पार्लियामेंटेरियंस अराइव्ड V2 है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर यूज नहीं होती। और नेक्स्ट, दिस इज द सेकंड ट्राइबल डेलीगेशन दैट हैज विजिट अफगानिस्तान फॉर पीस टॉक्स। ये
प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सब्जेक्ट है, सेकंड ट्राइबल डेलीगेशन हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव और आगे थर्ड फॉर्म विजिटेड। उसके बाद एज अ ट्राइबल जिरगा हैड मेड अ सिमिलर एफर्ट इन जून और ये प्रेजेंट पर ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। सब्जेक्ट ट्राइबल जिरगा, हैड हेल्पिंग वर्ब जो कि पास्ट इंडेफिनिट की होती है और आगे मेड अ सिमिलर एफर्ट इन जून। These frequent visits either convey that negotiation with the TTP are on track or that the state is desperate to do everything it can to make the peace with the group। इसके अंदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज हुआ है सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस V1 जो कैन यानी ये पॉसिबिलिटी के लिए जाहिर किया जाता है कैन को, कैन हेल्पिंग कैन मॉडल वर्ब है और मेक V1 है। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल द एविडेंस पॉइंट टू द लेटर प्रोबेबिलिटी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऑल द एविडेंस ये सब्जेक्ट है, पॉइंट्स V1 है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज को यूज नहीं करते तो इसलिए सब्जेक्ट और V1 को इस्तेमाल किया। पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। या इट वुड अपीयर दैट एज द स्टेट टॉक्स पीस विद द मिलिटेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट द स्टेट है और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज इस्तेमाल होती है लेकिन वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होती है, इसलिए यहाँ डू और डज इस्तेमाल नहीं हुई। और V1 टॉक्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ एस या ES अगर सब्जेक्ट क्या हो हमारा सिंगुलर हो। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। अदर एरियाज इन KP to be rid of the terrorist should not be forgotten, ये मॉडल वर्ब है लेकिन ये मॉडल वर्ब का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, ये मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर मॉडल वर्ब को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दें तो उसके साथ शुड बी और साथ V3 इस्तेमाल होती है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब और फिर बी और V3 इस्तेमाल होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है द मिलिटेंट आर विलिंग टू रिसीव द वेरियस डेलीगेशन सीकिंग पीस विद देम, ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसके अंदर द मिलिटेंट सब्जेक्ट है और ये प्लूरल की वजह से इसका जो है वर्ब है वो आर है और साथ बाकी कंप्लीमेंट यूज हुआ है। नेक्स्ट दे हैव इंडिकेटेड that they will not budge from their unconstitutional demand of having the KP FATA merge reserved, इसके अंदर they सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और इंडिकेटेड V3 है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है और V3 वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द उलमा रिपोर्ट्स सीनियर पाकिस्तान उलमा डेट वर, ये एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसमें अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स सीनियर पाकिस्तान उलमा जो एक सब्जेक्ट है, वर जो है वो वर्ब की फॉर्म है, वर्ब यहाँ सिंपल वर्ब इस्तेमाल हुई है और बाकी सारा सेंटेंस क्या है कंप्लीमेंट। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। द रेड लाइन सेट बाय द स्टेट, ये एक सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है, कैन नॉट बी वायलेटेड, इसके अंदर भी जो मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि कैन नॉट बी आ गया है और साथ V3 आ गया है, यानी ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3, ये मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जबकि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 होता है। ये सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 और पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3। नेक्स्ट द एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है, डेट हैज लेड और ये डेट हैज लेड ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें हैज हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है और साथ V3 इस्तेमाल होती है और साथ ही इसके मस्ट रियलाइज दैट मॉडल वर्ब का सेंटेंस भी यूज किया गया है जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1। आल्सो सेंडिंग डेलीगेशन, यहाँ एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, अगर V1 के साथ ING की फॉर्म लगा दे तो एक उसे जेरेंट बोलते हैं, यहाँ जेरेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में पाकिस्तान इज डेस्परेट फॉर अ पीस ट्रीटी विद द टेररिस्ट, ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें पाकिस्तान सब्जेक्ट है, इज जो है वो मेन वर्ब है और आगे कंप्लीमेंट है। सिंपल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। इफ द TTP abides by the states rules of engagement, इसमें states rules of engagement सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है, टॉक्स
प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, डू डज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब्जेक्ट और V1 से काम चलाएंगे। नेक्स्ट, बट द मिलिटेंट कैन नॉट बी अलाउ, इसके अंदर भी ये मॉडल वर्ब कैन नॉट, मॉडल वर्ब आगे बी है और V3 है, तो ये भी मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3। नेक्स्ट, also as parliament is supposed to have oversight over the process, इसके अंदर जो पार्लियामेंट है ये सब्जेक्ट का काम अदा कर रहा है, सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है। पार्लियामेंट एक सब्जेक्ट है और इसके साथ इज जो है मेन वर्ब है और बाकी सारा ये कॉम्प्लीमेंट है, बाकी सब ये कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये एक सब्जेक्ट है और कैन मॉडल वर्ब है, इसका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब। इस एडिटोरियल में जो ज्यादा सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है वो नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल करते हैं, और नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और साथ कंप्लीमेंट सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, और नंबर 3 देयर प्लस इज एम आर प्लस कंप्लीमेंट, ये थर्ड कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, और पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V2, लेकिन पॉजिटिव के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल नहीं करेंगे, और नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस V3 है, और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V प्लस V3, यानी मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है।